Hello, dear students. In the previous lectures, we have discussed about all the properties of PN junction diode and how PN junction diode can be used in further applications. Now, in today's lecture, we will start the most important application of PN junction diode, that is diode rectifier. So, first of all, what do you understand by diode as a rectifier? Means we are using diode and we will prepare rectifier. Okay, what is the function or something in detail about the rectifier is uh, the electric power we have is of two type, AC and DC. Okay, so in some cases we have to convert AC into DC, and in some other cases we have to convert DC into AC. So they require some device which will convert both of them, or AC to DC or DC to AC, and these are the special, we can say, devices. If we want to convert AC into DC or DC into AC, so the device which is used to convert AC into DC, that is known as rectifier. That is known as rectifier. And the device which is used to convert DC to AC, that is known as inverter, जो कि जनरली हमारे घरों में यूज़ हम करते हैं, लगा होता है. तो ये आपने इसमें पॉइंट याद रखना है. सो हमारा मेन जो क्वेश्चन है, दैट इज़ रेक्टिफायर, द डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट AC into DC, because there are so many things or devices or machines which are not operated directly on AC, they are operated on DC. So we have to convert AC into DC, and the device which will convert AC into DC, that is known as rectifier. Okay, it is mainly of two type which we will study, and further there are number of type depending on the quantity of diode used. If we use only one diode, then the rectifier is known as half wave rectifier. And if we use two diodes or more, like हम 4 भी यूज कर सकते हैं, then the rectifier is known as full wave rectifier. जनरली हमें इसकी आउटपुट से पता लगेगा कि वो हाफ वेव है या फुल वेव है. तो उसका प्रिपरेशन जब सर्किट का करते हैं, तो हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि जब एक डायोड यूज़ करके आप सिस्टम बनाओ, तब आपको हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है. जब आप दो डायोड या दो से ज़्यादा 4 डायोड का यूज़ करके आप बनाओगे, तो वो कहलाएगा फुल वेव रेक्टिफायर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर. So we will start now half wave rectifier. What do you understand by half wave rectifier, or how the circuit is completed, and how the value of input is given to the system, and we will take the output. So our question is, and it is important topic for exam point of view, half wave rectifier. So first of all, you will do the definition of rectifier as we discussed just before, and then the scheme of question to be answered in the exam is like this: is a electronic machine or device that is we use here. So there are some points you have to remember. The points are, first of all, you will write the introduction. This is the scheme of question. And second, we have to prepare a circuit diagram and explain what are the components it contain. Third, we have to explain the working. ठीक है, we have to explain the working of the circuit, how the circuit is working. And at number 4, we have to plot the input and
आउटपुट वेव्स, वेव फॉर्म, जो हमें इनपुट हमने दिया और जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसका एक वेव फॉर्म हम बनाएंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में आपको ये 4 पार्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो फर्स्ट आई विल डू द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों ने वही डेफिनेशन यूज़ करना है, रेक्टिफायर क्या होता है, किस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट इन विच वी गेट द आउटपुट इन हाफ वेव फॉर्म। ऐसा रेक्टिफायर जिसकी आउटपुट हाफ वेव फॉर्म में यूज होती हो या हमें मिलती हो, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड ऑल्सो इन दिस वी यूज ओनली वन डायोड। वन डायोड सिस्टम जब आप यूज करेंगे तो आपके पास कौन सा रेक्टिफायर बनेगा, द रेक्टिफायर इज हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, इसके साथ ही आपका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चलेगा। सो इन द सर्किट डायग्राम वी विल हैव एन इनपुट AC, this is AC input, and we will use the system of step down transformer, primary and secondary coils. You should write this, primary and secondary coil system. ये डायग्राम आपको एग्जाम में एज इट इज़ बनाना है, इसका आपने ध्यान रखना है। ये इस तरीके से S1 S2, तो ये P1 P2 जो है वो प्राइमरी कॉयल है, S1 S2 सेकेंडरी कॉयल है। तो और ये पूरा सिस्टम जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जैसा काम करेगा। उसके बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे आप एक अपना डायोड जो है वो सेट कर देंगे। लाइक आई हैव यूज्ड ओनली वन डायोड, सो आई नेम्ड इट एज D1। ओके, सो उसके बाद में क्या करना है, इसके अक्रॉस आप एक लोड रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर RL, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आप यहाँ पे क्या करते हैं, यू विल गेट द आउटपुट। और आउटपुट कौन सा आएगा, DC आउटपुट, जिसको हम VO से लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने दिया है इनपुट जो कि AC फॉर्म में है, दैट विल बी मीन्स वैल्यू इनटू साइन थीटा और फाई। तो इस तरीके से आप जो है साइन ओमेगा टी और साइन थीटा, एनीवन यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ साइन ओमेगा टी फेज शो करने के लिए। तो ये कंप्लीट जो है वो आपने सर्किट डायग्राम जो है इसका प्रिपेयर करना है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। AC मेन्स इनपुट आपने दिया, उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने लगाया, उसकी वजह से आप वोल्टेज की वैल्यू को कम कर सकते हैं। देन आपने क्या किया, एक डायोड लगा दिया, उसके बाद में आपने लोड डिस्टेंस लगा दिया जिसके अक्रॉस में आप अपनी आउटपुट वैल्यू को नोट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट इट्स वर्किंग। और थर्ड पॉइंट के साथ ही फोर्थ पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट विल अबाउट द फेज, या हम कह सकते हैं ग्राफिकल फॉर्मेशन और प्लॉट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ वर्किंग, जब हम लोग AC मेन्स यहाँ पे देंगे और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपना काम करेगा, सपोज हम ये मान लेते हैं कि जब इसको हमने इनपुट दिया तो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आता है तो S1 इज वर्किंग एज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू S2। इन फर्स्ट half cycle S1 is positive with respect to S2, that will be negative। तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल जब पॉजिटिव होगा तो डायोड को यहाँ पे, क्योंकि ये P है और ये N है, इसको ये पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड। जब डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस होगा तो हमारे पास
इसके थ्रू जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा और करंट की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी इन दिस डायरेक्शन। तो जब हमारे पास करंट जाएगा RL के अक्रॉस तो आउटपुट वोल्टेज के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट केस। एंड इन सेकंड केस, इन सेकंड हाफ साइकिल में मान लेते हैं कि अब S1 जो है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू S2। तो हम लिख सकते हैं S1 इज नाउ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू S2, दैट विल बिकम पॉजिटिव। तो इसके में क्या होगा कि जब ये नेगेटिव यहाँ जाएगा देन डायोड D1 विल बी रिवर्स बायस, और D1 रिवर्स बायस होने की वजह से आपके पास सिस्टम में काम नहीं चलेगा। डायोड रिवर्स बायस हो गया तो वर्किंग नहीं आएगा करंट का, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसको वेव फॉर्म के टर्म में आप एक्सप्लेन अगर करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, वो किस तरीके से होगा उसको देखें। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल देंगे तो S1 पॉजिटिव रहेगा, सेकंड हाफ साइकिल देंगे तो हमारा S1 जो है वो नेगेटिव होगा। तो मैं इसको अगर प्लॉट करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं वेव फॉर्म का फर्स्ट हाफ साइकिल एक बार लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ साइकिल मैंने लिया, दिस इज Vm, और ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, V इनपुट का है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग टू ओमेगा टी ये प्लॉट हम कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल जब मैंने लिया उस टाइम में क्या हुआ, S1 पॉजिटिव हुआ और S2 नेगेटिव हुआ। तो जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो आपका आउटपुट का ग्राफ मिलना है वो एज इट इज़ मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड बायस हुआ है तो करंट आया, उसके अक्रॉस में वोल्टेज जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी सेकंड, ये फर्स्ट हाफ साइकिल था, ये सेकंड हाफ साइकिल है। तो सेकंड हाफ साइकिल जब आप दोगे तो उस कंडीशन में S1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डायोड रिवर्स बायस होगा, वर्किंग नहीं करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा, तो वोल्टेज नहीं आएगा, तो सेकंड जो है वो खाली रहेगा। उसके बाद जब अगेन आप नेक्स्ट हाफ साइकिल थर्ड लेके आओगे तो रिवर्स हो जाएगी पोलैरिटी, S1 फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आप शो कर सकते हैं ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग ये जो ग्राफ है इसको शो कर सकते हैं कि अगेन जब फोर्थ ये आएगा उस कंडीशन में ये फिर नहीं वर्किंग करेगा। तो हमारे पास जनरली क्या हो रहा है कि डायोड जो है उसको वर्किंग और उसके रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से आप क्या करोगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ आप लोगों को आउटपुट मिलेगी, जहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल आते हैं वहाँ आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। इसको अगर मैं और एक्सटेंड करूँ तो मेरे पास ये इसके ख़त्म होने के बाद में फिर मुझे आउटपुट मिल जाएगी। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल क्योंकि डायोड रिवर्स बायस कर जाता है तो आपको नहीं मिलती, यानी हाफ वैल्यू ही हमें आउटपुट में मिल रही है। सो वाई दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। So this is all about the question half wave rectifier. I hope you will understand this. Okay, now second question is full wave rectifier. इसको आप कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे। Now second question is full wave rectifier. क्वेश्चन करने का पैटर्न स्कीम वही रहेगा। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद में आपने डिटेल करना है सिस्टम के अंदर, और वो जो डायग्राम है उसको आप कंप्लीट करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, और उसके साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर डिटेल बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट रेक्टिफायर in which we get the full waveform of the output. We will get the full waveform of the output, and we will use number of diode, like we can use 2 diode system or we can use 4 diode system. ठीक है, जो 2 diode system होगा वो जो है वो सिंपल हम कह सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर होगा, लेकिन जो 4 डायोड सिस्टम होगा उसको आप कह सकते हैं दिस इज नोन एज द ब्रिज शेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। 4 डायोड सिस्टम, अभी हम सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे इसका तब आप देखोगे कि दिस इज द ब्रिज शेप फॉर्मेशन। तो फर्स्ट वी विल यूज द 2 डायोड सिस्टम। पहले 2 डायोड सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं,
उसके बाद में हम लेके चलेंगे। तो द फुल वेव रेक्टिफायर इन विच वी विल यूज़ 2 डायोड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन सारा आप लिख देंगे, डेफिनेशन वगैरह आपने इसके अंदर नोट करना है। उसके बाद में हमारा मेन जो है वो आता है सर्किट डायग्राम, वो कैसा होगा इसके अंदर, और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन। बड़ा इजी क्वेश्चन और पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम में फर्स्ट वही आपने क्या करना है, एसी जो मेंस है उसको शो करेंगे आप। उसके बाद में आपने उसी तरीके से जो कॉइल सिस्टम है उसको शो करना है। दिस इज़ लाइक P1 P2 और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। नाउ द मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दिस केस वी हैव टू यूज़ 2 डायोड सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, एक डायोड यहाँ लगा देंगे लाइक D1 और एक डायोड आप यहाँ लगा देंगे लाइक D2। दिस इज़ D1 एंड दिस इज़ D2 और ये हमारा कॉइल रहेगा सेकेंडरी कॉइल सिस्टम S1 एंड S2। ओके, इसमें जो एक ख़ास बात ये है कि हमें सेकेंडरी ट्रांसफार्मर सिस्टम जो है उसके अंदर सेंटर टेप्ड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर सिस्टम यूज़ करना है ताकि हमारी वैल्यू जो है वो हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो वो सेंटर टेप सिस्टम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं डायग्राम को। तो इसमें आप लोग सर्किट को ऐसे बनाएंगे कि ये दोनों साइड से वायर जो है वो यहाँ पे जाके आपको मिलेगा, और फिर आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप एक लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को अप्लाई कर दोगे, दैट इज़ RL, और इसके अक्रॉस यहाँ आपको क्या करना है, इस रीजन के अंदर आपको आउटपुट की वैल्यू को नोट करना है। तो वो जो सेंटर टेप सिस्टम रहेगा वो इस तरीके का रहेगा कि यहाँ एक स्पेशली आप वायर यूज़ करेंगे एंड दैट विल बी कनेक्टेड टू दिस सिस्टम, दैट विल बी कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है सेंटर टेप सिस्टम लगाने के बाद में। नाउ द करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज़ लाइक दिस, यहाँ से इस तरीके से जाएगा वैल्यू, यहाँ आएगा और ये इसके अंदर जाके इस तरीके से फ्लो कर जाएगा, और जब D2 वर्क करेगा तो भी इस तरीके से वैल्यू आपका डील करेगा और वो भी यहाँ से फ्लो करेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो आउटपुट के डायग्राम के अंदर आपका वेव फॉर्मेशन जो है वो अपवर्ड हाफ साइकिल की फॉर्म में ही आपको मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम। नाउ वर्किंग में मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करता हूँ सीधा। स्टार्टिंग हम AC मेन से लेते हैं। तो AC मेंस की वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे इसके अंदर, तो डायग्राम बना के ही हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट का सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल हम लेके आते हैं और दिस वैल्यू इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू VM मीन वैल्यू। ओके, तो इसके टाइम में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा उसको हम लोग नोट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, देन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से, एंड देन फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हम इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आउटपुट लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं किस तरीके से काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट हाफ साइकिल जाएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें पता लग रहा है कि प्राइमरी कॉयल के बाद सेकेंडरी कॉयल सिस्टम में फर्स्ट हाफ साइकिल जब जाएगा तो सपोज दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। D2 जो है वो नेगेटिव होगा, इसका ये याद रखना है आपने, P और N, यहाँ पर भी P और N। तो जब आपका S1 जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट करेगा, यहाँ पे जब ये इनपुट AC जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा, इन दैट कंडीशन S1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो D1 जो है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, बट D2 विल रिवर्स बायस। तो D2 फंक्शन नहीं करेगा, D1 फंक्शन करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे थ्रो द क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये वर्क करेगा, करंट आएगा अक्रॉस द RL और आउटपुट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो वो आउटपुट की वैल्यू का डायग्राम आप बना सकते हैं। दिस इज आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू इनपुट। ओके, इन केस ऑफ सेकंड हाफ साइकिल, जब आपका सेकंड हाफ साइकिल जाएगा, तो सेकंड हाफ साइकिल जाएगा तो S1 की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव और S2 की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। जब S1 की नेगेटिव होगी तो D1 रिवर्स बायस करेगा, सपोज फंक्शन नहीं करता नो प्रॉब्लम, बट D2 जो है वो फंक्शन कर देगा। D2 फंक्शन कर देगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो रहा है। जब आपका सेकंड ये नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे जाएगा तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट फिर आ जाएगा। अब क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है तो हमें इसके अक्रॉस में आउटपुट मिल जाती है। तो वो आउटपुट का वेव फॉर्म आप
बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये रहता है कि ये पॉजिटिव क्यों बना, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंज्ड, सेम रहती है इसलिए पॉजिटिव बनेगा। अगेन जब थर्ड हाफ साइकिल जाएगा तो S1 की वैल्यू फिर पॉजिटिव हो जाती है, S2 की वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाती है, D2 फिर वर्क नहीं करेगा, D1 वर्क करेगा, फिर आपका वेव फॉर्म आपको मिल जाएगा। सिमिलर जब फोर्थ जाएगा तब भी आपको वेव फॉर्म मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस वी कैन से डिटेल डायग्राम और ब्रिज शेप्ड रेक्टिफायर, जिसके अंदर हम 4 जो है वो डायोड यूज़ करेंगे, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर in which we will use the 4 डायोड सिस्टम। तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। अब क्या एडवांस है कि जब 2 डायोड सिस्टम से हमारा काम चल रहा था और 4 डायोड सिस्टम में क्यों हम कन्वर्ट करेंगे, उसका रीज़न है कि 2 डायोड सिस्टम में हमें वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर सिस्टम लेना पड़ता है। जब हम 4 डायोड सिस्टम यूज़ करेंगे तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इसमें लिख सकते हैं दिस इज ब्रिज रेक्टिफायर, आल्सो नोन एज bridge rectifier, in which we will use 4 diodes and that are arranged in a form of bridge। तो इसको डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिख लोगे एंड सर्किट डायग्राम में सबसे पहले आपने AC मेंस यहाँ पे देना है, उसके बाद में प्राइमरी कॉइल सिस्टम आपने बना दिया लाइक P1 P2, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिस्टम में आपने सेकेंडरी कॉइल बना देना है इस तरीके से। देयर इज़ नो इश्यू इन मेकिंग द सेकेंडरी कॉइल सिस्टम। उसके बाद में क्या करना है, हमने एक ब्रिज फॉर्मेशन जो है उसको यहाँ पे सिस्टम में अप्लाई करना है। तो ब्रिज फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, दैट इज़ लाइक यहाँ पे आपने एक डायोड लगाना है, उसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगाना है। ओके, अब ये थोड़ा सा आप इसकी डायग्राम बनाते टाइम में इसको याद रख लेना। जैसे मान लो ये फर्स्ट डायोड है, ये सेकंड डायोड है, इसको मैं नेम दे देता हूँ D1, इसको मैं नेम दे देता हूँ D2। तो अल्टरनेट जो है ना बाइसिंग फॉरवर्ड रिवर्स रखनी है हमने। तो ये अगर हमने फॉरवर्ड बाइस केस में बनाया तो ये हमने क्या कर दिया, रिवर्स बाइस केस में बना दिया। अब जब नेक्स्ट में बनाऊंगा तो मेरा फॉरवर्ड बाइस बनना चाहिए, और इससे नेक्स्ट जब मैं बनाऊंगा तो मेरा केस जो है वो रिवर्स बाइस केस बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ। ये मेरा हो जाएगा फोर्थ, इसको मैं D4 बोलूँगा, और ये जो केस है इसको मैं दिस विल बी, इसके कंपैरिजन में इसको हमने करना है रिवर्स बाइस, तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप पूरा सिस्टम जो है इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे। दिस इज़ PNN। ओके, ये इस तरीके से नहीं बनेगा, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस, दिस इज थर्ड डायोड D3। तो ये आपके पास जो है फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। D1, D2, D3 एंड D4। तो इनके अंदर फ्लो ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे रहेगी वो आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। These two are simultaneously forward biased and these two are simultaneously forward biased। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी, मतलब D2 और D4 एक साथ वर्क करेंगे, D1 और D2 एक साथ वर्क करेंगे। डायग्राम बनाते टाइम भी आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। एंड दिस S2 coil is connected to this terminal and from this we will get the output portion, and from here we will use load resistance RL, and across the load resistance we will get the value of output। तो ये जो है हमारे पास डायग्राम रहेगा, सर्किट डायग्राम। एंड इन दिस केस ऑल्सो द फ्लो ऑफ करंट इन बोथ टाइप्स आर सेम, सो आउटपुट वेव फॉर्मेशन भी हमारे पास एक जैसा ही रहेगा। तो ये सारा का सारा जो है एक तरीके से तामझाम आपने इसके अंदर करना है। दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम ऑफ द ब्रिज शेप फॉर्मेशन। नाउ वर्किंग।
वर्किंग में बड़ा सिंपल है, इजी फॉर्मेशन है, जैसा पहले किया था, इनपुट पॉजिटिव साइकिल, देन नेगेटिव साइकिल, देन पॉजिटिव साइकिल, देन नेगेटिव साइकिल, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यू बनाएंगे तो वो वैल्यू किस तरीके से आएगा उसको हम समझते हैं। नाउ इन इनिशियल केस व्हेन फर्स्ट हाफ साइकिल इज टेकन इनटू इनपुट, देन our S1 suppose will become positive and S2 will suppose become negative. S1 will become positive, so positive goes to this, will do the D1 to forward bias, and positive goes to this, will do this to the reverse bias. So D1 वर्क करेगा, D2 वर्क नहीं करेगा, एंड ऑल्सो नेगेटिव विल गोस हेयर, एंड नेगेटिव जब D4 की तरफ जाएगा तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा, ये काम नहीं करेगा। जब ये नेगेटिव यहाँ जाएगा तब ये क्या करेगा, D3 फॉरवर्ड बायस करेगा। सो इन दिस केस व्हेन first half cycle is used, then S1 will become positive and S2 will become negative. So D1 and D3 are forward biased and D2 and D4 are reverse bias in this case. सो D3 और D1 जो है वो वर्क करेंगे फॉरवर्ड बायस केस में, तो हमारे पास इनके थ्रू जो है करंट फ्लो करेगा और वो RL के क्रॉस जब जाएगा तो वोल्टेज डेवलप करेगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एंड दैट वैल्यू विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड हाफ साइकिल S1 विल बिकम नेगेटिव, S2 विल बिकम पॉजिटिव। सो पॉजिटिव यहाँ पहुँचेगा, नेगेटिव यहाँ पहुँचेगा। इन दैट केस जब S1 जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, S2 जो है वो पॉजिटिव होगा, तो D1 और D3 अब क्या करेंगे, रिवर्स बायस होंगे। D1 एंड D3 आर रिवर्स बायस एंड D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस, सो दैट कि हमारे पास आउटपुट में फिर करंट आएगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एंड आउटपुट के अंदर वैल्यू आपकी आ जाएगी, और वो वैल्यू भी इसी तरीके से आएगी क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। सो वी विल गेट द वेव फॉर्मेशन लाइक दिस इन केस ऑफ a full wave rectifier if we use the bridge shape structure. So this is all about the diagram. The only difference between bridge shaped rectifier and two diode system full wave rectifier is that we are not using here the center tape transformer system, और अगर आप टू डायोड सिस्टम को यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में तो आपको सेंटर टेप यूज़ करना पड़ता है। दिस इज ओनली द एडवांस फॉर्मेशन ऑफ दिस, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। So this is all about the today's lecture. In next lecture we will study more detail about the rectifier system. Thank you.